So can you identify these animals which this chapter is Animal Kingdom. Are you able to identify the phylums of the animals which are shown here? Which animals are shown on the screen? Any one of you can tell me, unmute yourself and can tell me that which animals are you able to identify? Other persons are also joining. Let them join. Until then, we are trying to understand this animal which is shown in the right corner is what? Land snail. It is land snail or called apple snail. Okay, Phyla. It's called Phyla globosa. Phyla globosa, and you can see the shell over its body. And there is the two antennas also there on the head. And this is the muscular foot which you are looking at. Inside the shell, there is visceral hump also, which have all the internal organs. So this belongs to the phylum Mollusca. Understood? This belongs to the phylum Mollusca. Are you able to identify this creature? This is what? Dragonfly. This is called as dragonfly. कॉमन लैंग्वेज में जिन्हें हेलीकॉप्टर बोलते हैं हम, पर ये बायोलॉजिकली क्या है? ड्रैगन फ्लाइज हैं. दे बिलोंग टू विच phylum? They also have jointed legs, so they will belong to what? Arthropoda. They will be belonging to arthropoda. Can you see that there are wings? There is abdomen, and there are legs which are having joints. Next, this animal which is showing parapodia to you, this one. This animal is called Nereis. What is this animal? This one is from phylum Annelida. Yes, Nereis is from phylum Annelida. So this is Nereis, and it is on the aquatic annelid. And the first one which we have described was mollusk. The second one we have described dragonfly, arthropoda. This is somewhat which is colorful, which is observed here, just growing like a slime mold. कलरफुल एक स्लाइम मोल्ड की तरह ग्रो होता हुआ दिख रहा है हमको. कोरल्स हो सकते हैं ये कलरफुल. Now biological classification, the basis of classification you already know. हमने एनिमल किंगडम को स्टार्ट किया था, तब हमने ये पढ़ा था कि हर एनिमल को कोई सा भी हो चाहे, हमको उसको कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसपे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं. तो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, organ level organization, and organ system level organizations. These are the level of organization. Is it the slide visible to you? Yes, ma'am. So the cellular organization has just sponges, which are the loose mass of cells. Tissue level organization contains ciliate traits, and they also contain the ctenophores. Then organ level comes flatworms. With organ system level, we start with Annelida and arthropodas, and so on with the chordates. Till chordates, the others are having the organ system level. Symmetry, we have studied that there can be three forms. Asymmetrical organism can be there, which is not having symmetric line of symmetry. Radial organism having radial line of symmetry. Example, coelenterate and echinoderms. Bilateral symmetry, annelids and arthropods. Embryonic layer, on the basis of embryonic layer, the 3 germ layers, we say that it is triploblastic, and the 2 germs layer, we say that it is a diploblastic. 2 are ectoderm and endoderm, 3 are ectoderm, mesoderm and endoderm. So triploblastic start from platyhelminthes. Is it clear? Mahi, are you able to see it?
Yes, ma'am. Now coelom. Coelom is the cavity between the body wall. Mesodermal region में जो cavity मिलती है, that is called coelom. And on the basis of coelom किस तरह की है, complete है, तो we say that pseudocoelom, and incomplete complete है तो we say that eucoelomate, true coelomate, and incomplete है, pouches में मिल रही है, we say that pseudocoelom है organism में. तो दे ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी कैसी है, बिल्कुल भी कैविटी नहीं है तो हम बोलेंगे विदाउट, ए लगा दिया, दैट मीन्स विदाउट. विदाउट सीलोम, नो सीलोम इज प्रेजेंट. एग्जांपल इज गिवन platyhelminthes. Pseudocoelom में the cavity is present in the pouches. It's not lined by mesoderm either and found in patches. So ये patches से होती है और mesoderm region में इससे लाइन भी नहीं होती, mesodermal लेयर से लाइंड भी नहीं होती है. ओके. नाउ सिलोमेट में आर्थ्रोपोड्स आते हैं. आर्थ्रोपोड्स के बाद कॉर्डेटास के सारी क्लासेस जो अब हम पढ़ेंगे भी, एव्स, मैमेलिया, एम्फीबिया जो हमने पढ़ी है, सब सिलोमेट्स में आती है. नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स में एनिमल्स को. जो नोटोकॉर्ड जिनमें नहीं मिलती है उनको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड मिलती है उन्हें हम कॉर्डेट्स बोलते हैं. सो पॉरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक सारे क्या हैं, नॉन कॉर्डेट हैं. सो द फाइलम्स विच वी लर्न फ्रॉम पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, ये सब नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती. पॉरीफेरा इसमें आ गया, देन सीलेंट्रेटा, देन टिनोफोरा come in this. After this Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelids, Arthropods, mollusks, Echinoderms. These first 5-6 phylums comes in the non-chordates, and then the notochord structure started observed, and we call that firstly primitive chordates will be there, and then the higher chordates will be there. This flowchart I told you to draw from your NCERT. This type sort of flowchart is given. बॉडी कैविटी के बेसिस पे एसिलोमेट में देयर इज नो बॉडी कैविटी एंड द मीजोग्लिया नहीं मिलता, तो उसमें मीजेनकाइम मिलती है जो बॉडी वॉल्स की स्पेसेस को फिल करती है. फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज में, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज तीनों लेयर्स इसमें अटैच रहती हैं एक के बाद एक, और कोई बॉडी कैविटी नहीं मिलती, तो एसिलोमेट तो है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज. बट मीजोडर्म की जगह मीजेनकाइम इसमें मिलती है, मीजेनकाइम. These are the cells which fill the spaces. Now there is the pseudocoelom which is found in the Aschelminthes. In Aschelminthes you find pouches में coelom होता है, pouches में body cavity होती है, और ये लाइन भी नहीं होती मीजोडर्म से. नेक्स्ट फाइलम से शुरू होता है जो कि आपका एनेलिडा है, वहां से शुरू होता है कि ट्रू बॉडी कैविटी मिलना शुरू होगी. पर पहला जो पोर है एम्ब्रियो में, प्रोटोस्टोमिया, वो पोर अगर माउथ बनता है तो उन्हें प्रोटोस्टोम कहते हैं उन एनिमल्स के. और एम्ब्रियो में जो होल होता है, अगर वो सेकंड वाला पोर उनका माउथ बने, फर्स्ट एनस बने, ब्लास्टोपोर फर्स्ट पोर है, अगर वो एनस बने और सेकंड पोर माउथ बने तो हम उन्हें ड्यूटरोस्टोम कहते हैं. तो प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम में फर्क कितना है, एम्ब्रियो में जब इन्वेजिनेशन होगा लेयर्स का और वो ऑर्गेनिज्म को बनाना शुरू करेंगे, उस टाइम पे जो ब्लास्टोपोर होगा, दैट मींस ब्लास्टुला इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज. ब्लास्टुला में स्टेज में, एम्ब्रियो की स्टेज में पोर होना शुरू होगा. अगर वो पहला पोर माउथ बन जाता है तो वी कॉल दैट ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्रोटोस्टोम.
अगर पहला पोर एनस बनता है, ब्लास्टोपोर अगर एनस बनता है और दूसरा पोर माउथ बनता है ड्यूटेरोस्टोमिया, यानी सेकंड पोर माउथ बनता है, फर्स्ट पोर क्या बनता है, एनस, तो उन्हें ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। और उन एनिमल्स में आते हैं आपके इकाइनोडर्म्स से लेकर कोरेटा, यानी हम भी मैमल्स भी ड्यूटेरोस्टोम में आते हैं, जबकि फाइनल एनिलिडा, फाइनल आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क ये आते हैं प्रोटोस्टोम्स में। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now we will come to the next slide. Osculum, this is the structure of sponge. इस तरह का स्ट्रक्चर हमने भी देखा था बना करके बॉडी के अंदर। देयर इज अ सेंट्रल कैविटी एंड द होल बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज इज लाइंड बाय द पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। तो पोर के साइड में आप देख रहे हो ओस्टिया लिखा हुआ है, एंड ओस्टिया के साइड में स्पिक्यूल्स आपको देख रहे हैं, एंडोस्केलेटन बनाते हैं स्पॉन्ज का। स्पिक्यूल्स आर देयर, व्हाइट कलर कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स आर लाइंड इन द इनर लेयर। वी हैव टोल्ड यू दैट देयर इज द इनर लेयर कॉल्ड कोएनोडर्म। अंदर की लेयर कोएनोडर्म कहलाती है क्योंकि उसमें कोएनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स होते हैं जिनका हमेशा फ्लैजिला बीट करता रहता है। तो कोएनोडर्म्स में फ्लैजिला बीट करने से पानी का मोशन अंदर रहता है और पानी के अंदर जितने भी फूड मटेरियल्स हैं वो अंदर आते जाते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पॉन्ज। और अगर आप ओशन में देखोगे तो आपको इस तरह की स्पॉन्जेस दिखेंगी, कलरफुल रहेंगी एंड शेप्स भी डिफरेंट होंगी इनकी। और आपकी बुक में इनके नाम भी दिए हुए हैं, यू स्पॉन्जिया, साइकॉन and Venus basket. These are the sponges which are given. आप टॉप में इनके देख रहे हो सबके पोर भी प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, जो टॉप का पोर होता है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। नाइडेरिया के फीचर्स शुरू हो गए हैं इसके बाद, स्पॉन्ज के बाद नाइडेरिया के फीचर्स जो आपको स्लाइड दिख रही है, दीज आर शोइंग द नाइडेरिया फीचर्स। इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं और स्टेशनरी भी हो सकते हैं। स्टेशनरी होते हैं नाइडेरिया, वो सिसाइल होते हैं। नाइडेरिया डिराइव हुआ है नाइडोब्लास्ट नाम के सेल से। टेंटिकल्स इनके पास होते हैं अपने डिफेंस को, अपने खाने को पकड़ने के लिए। स्टिंजिंग कैप्सूल होता है निमेटोसिस्ट नाम का। सिंगल सेंट्रल कैविटी होती है। डाइजेशन पार्टली एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होता है। स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है जिसे कोरल भी कहते हैं। These are tissue level organization, polyp और medusa। पॉलिप sessile होता है, जबकि जो उसका एग्जाम्पल है सिलेंड्रिकल और sessile होता है पॉलिप, वो मूव नहीं करता। उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, एडमेसिया। एंड मड्यूसा क्या है, अम्ब्रेला फ्री जैसी स्टेज होती है जेलीफिश की जैसी। ऑरिलिया, ऑरिलिया इज अ बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम इज जेलीफिश। Both stages are showing their metagenesis, that means polyp produce medusa by asexual production, medusa produce polyp by sexual production in Obelia. So examples are also given, common names are given. Physalia is called Portuguese man of war, Admesia is called sea anemone, and meanderine is called brain coral because उसका shape brain की तरह दिखता है तो उसे brain coral भी कहते हैं, meanderine. These are the internal structures of the you can say नाइडेरिया के अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। यू कैन सी ब्राउनिश ऑरेंजिश कलर की गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी दिखा रखी है बाहर, और उस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का जो लेयर है जो उसे लाइन कर रहा है उसे गैस्ट्रोडर्मिस बोला गया है। उसके बाहर एक नॉन लिविंग लेयर रहेगी जिसे मीजोडर्म ना बोलकर मीजोग्लिया बोलते हैं। नर्व नेट दिखा रखी है क्योंकि इनके अंदर नेटवर्क जैसा नर्वस सिस्टम मिलता है। और आउटर मोस्ट एक्टोडर्म में एपिडर्मिस दिखा रखी है। यू कैन सी नाइडोसाइट्स आर प्रेजेंट। नाइडोसाइट्स की वजह से इनको नाइडेरिया नाम दिया गया है। नाइडोसाइट्स में निमेटोसिस जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ नाइडेरिया के फाइलम के कुछ मेंबर्स इमेजेस दे रखी हैं। सी पैन, फाइसेलिया, ब्रेन कोरल। कैन यू सी द ब्रेन कोरल?
Sea anemone is given. Brain coral diagram is shown. Is it visible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So as in our brain there are gyri and sulci. ब्रेन के अंदर हमारे भी क्या होता है, डिप्रेशंस होते हैं. 10th में हमने ब्रेन का डायग्राम भी पढ़ा था. तो जैसे हमारे अंदर भी इस ब्रेन के अंदर इस तरह का ऐसे कर्व्स ऐसे ग्रूव्स ऐसे करके होते हैं, इनके भी कोरल्स में पूरा का पूरा इस तरह का कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, ब्रेन कोरल्स. नाउ वी विल मूव टू, हम इनके फीचर्स जल्दी जल्दी देखकर आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज हम कौन से टॉपिक पे थे, वी वर ऑन द टॉपिक वी हैव टू रीड रेप्टिलिया नाउ, बिकॉज हमने एम्फीबिया तक कंप्लीट कर लिया था, इसलिए हम इसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं. देन वी आर मूविंग टू द रेप्टिलिया टॉपिक. These are the characteristic feature. If you want, you can take the screenshot also. कि ये इनके characteristic feature हैं किनके, कीनोफोरास के. So हम नाइजीरिया के बाद कीनोफोर्स को पढ़ते हैं, कीनोफोर्स के फीचर्स वैसे हमने पूरे कॉपीज में लिख रखे हैं. उन बच्चों के लिए कंपलसरी है जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, जो एब्सेंट थे, वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनसे नोट्स बना सकते हैं. Yeah, Is it? ma'am. So these are the Tinophores examples and their diagram is also given. So Tinophore का diagram देख रहे हो आप, pharynx दिखा रखा है, mouth दिखा रखा है, anal pore दिखा रखा है, gut they have shown the tentacles, tentacle sheath, and the complates. Complates are called teens, CTENEs. There are 8 rows of complates. और एक गूसबेरी जैसा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है. तो इसमें आपको क्या क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, टीन्स आपको आइडेंटिफाई हो रही हैं. यू आर आइडेंटिफाइंग दिस मस्कुलर फेरिंग्स लाइक स्ट्रक्चर. ऑन द टिप देयर इज अ माउथ and these are the tentacles, long tentacles coming out of tentacle sheath. So this Y-shaped structure is a tentacle sheath. Okay, and the anal pore is at the top. Are you able to see this image? Clear? You can take screenshot of the image also. Now these are the, in the sea, the ctenophores look like this. They have the property of bioluminescence. आप देख रहे हो जुगनों की तरह ये चमक रहे हैं, because ये भी अपने अंदर से ऐसा रिएक्शन करते हैं जिससे लाइट बनती है. Is it clear? Platyhelminthes के features are given. Flatworms. Mahi, are you able to see it? You can do it. The video will be uploaded on the YouTube channel also. I will share the link. And वहां पर पॉज करके भी अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते, पॉज करके भी इनके फीचर्स लिख सकते हैं. Planaria anatomy diagrams are given here. Pharynx extended through mouth, auricle, eye spot, gastrovascular cavity is shown, internal structures are shown. Organ system level आ जाता है फ्लैटफॉर्म्स में. कुछ एग्जाम्पल हैं टेपवर्म्स के भी. अब एस्केलमेंथीज के फीचर्स आर शोन हियर. This is just for revision. There are diagrams which are given. If you want, I can share the PowerPoint also to you. PowerPoint भी ग्रुप में मैं भेज दूंगी, जिसको भी डायग्राम देखना हो, डायग्राम बनाना हो, you can make it. Is it clear? Yes, ma'am. These are few more examples of arthropod. Now the arthropod annelidas will come. The annelidas will come, which are the segmented and round segment worms, which are having the annually ring segment होती है इनकी, ring worm भी इनको कहते हैं, annelids को. And these are the features.
एक्सक्रीटरी वेस्ट को कास्टिंग बोलते हैं। अर्थ को खाते हैं, अर्थ में जो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड मैटर्स हैं, उनको खाकर अपने डाइजेशन करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरी कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट एनिमल है जिनमें प्रोसिलोम थी, ट्रिपल लेयर थी बॉडी, और ऑर्गन सिस्टम लेवल पूरा पूरा आ गया था। कैन यू सी वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर शोन हियर? Digestive system, then nervous Yes, ma'am. system is shown here. The various systems like circulatory system, closed circulatory system is shown. Diagrams of various annelids are shown. Earthworm, Spirobranchus, leech, Nereis, lungworm are shown. Arthropods. So arthropods are very important because they are having the segmented jointed limbs, and they are the insects which are the largest phylum. हर 10 animals में आप कहीं भी देखो तो you find 7 arthropods. Can you see their legs are jointed? They are having jointed legs. So in cockroach, how many pair of legs you are observing? In cockroach, you are observing 3 pair of legs. In scorpions, you are observing 4 pair of legs. And in the front, they are the claws which are there. And same is locust. Locust is showing you 3 pairs of legs. And the centipede is Myropoda. That means they are having many legs, millions of legs, and their segments are also there. आजकल आप देखोगे कि बारिश के समय में इस तरह की छोटी छोटी सी रोड्स पे आपको मिलती हैं, इस तरह की सेंटीपीड्स। सो ये भी किस में आती हैं? आर्थ्रोपोड में आती है। बटरफ्लाई, स्टिक इंसेक्ट, आर्मी एंट, लेडी बर्ड, हरक्यूलिस बीटल, ड्रैगन फ्लाइज। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो कौन सा फाइलम है? मोलस्का। मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। मोलस्का का अंदर से डायग्राम आपको मैंने एक शेयर भी किया था, और ये भी एक डायग्राम है मोलस्का का। ये भी अच्छा डायग्राम है जो आपको सारी चीजें बता रहा है। गोनैड्स कहाँ पर है, हार्ट कहाँ पर है, वेयर यू फाइंड सिलोम, वेयर यू फाइंड नेफ्रीडियम, वेयर यू फाइंड शेल, इंटेस्टाइन, digestive glands, mantle, mouth, radula. Can you see it? These are the molluscans. Example: Dentalium, chiton, octopus, sepia, land snails, pearl oyster, echinoderms. Echinoderms are having these features. They are having the spiny or body. Their internal diagram is shown here of the fish. I also made you draw in your copy. Can you see it? They have water-vascular system inside them, और रिंग कैनाल्स एंड रेडियल कैनाल्स के थ्रू पानी मेड्रियोपोराइट से अंदर आता है। मेड्रियोपोराइट एक पोर होता है, एस शेप कैनाल उससे पानी अंदर लाती है और डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी आर्म्स में, और उनसे वो रेडियल कैनाल के थ्रू वो ट्यूब फीट्स में जाता है। ट्यूब फीट्स चलने की भी मदद करती हैं उनको, और उनसे ही रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनसे ही रिलेटेड एक्सक्रीशन, डाइजेशन सब उनसे रिलेटेड होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम्स। कैन यू सी वेरियस टाइप्स ऑफ echinoderms here? How their skin is appearing? Their skin is appearing spiny. Therefore, they are called as echinoderms. Is it clear? Yes, ma'am. Now, hemichordata. This is the linking, we can say link kingdom, which is not kingdom, link phylum, which is connecting the chordates with the non-chordates, subphylum under chordata, and worm-like organism इसमें होते हैं, bilateral symmetrical, और circulatory system open type होता है, respiration gills से होती है, excretion के लिए proboscis gland होता है, sexes separate होते हैं। हमने तो बनाया है जो हेमिकॉर्डेट का डायग्राम, वो कट सेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर कट सेक्शन दिखा रखा है आपको। कैन यू सी द गिल स्लिट्स? Here you can see the proboscis also.
gill slits, heart, ventral nerve cord, hepatic sac, anus. All these are shown here, and the closed diagram is shown also under it. This we have made in the class, this type of diagram. Now phylum Chordata. The animal possessing notochord either throughout the life or during the embryonic life. Notochord is stiff and flexible rod-like lying ventral to the nerve cord. Notochord नर्व कॉर्ड के भी आगे की तरफ आती है, वेंट्रल आती है नर्व कॉर्ड के, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि नोटोकॉर्ड के ऊपर ही नर्व कॉर्ड डेवलप होती है, उसको सपोर्ट देने के लिए नोटोकॉर्ड होती है। तो अगर हम नर्व कॉर्ड से उसकी कंपैरिजन करें पोजीशन की, तो नर्व कॉर्ड के वेंट्रल एरिया में होगी नोटोकॉर्ड। तो कॉर्डेट का हमने बेसिक बॉडी प्लान पढ़ा था कि उसमें 5 फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, और कॉर्डेट का ये फ्लो चार्ट हमने बनाया था क्लास में। जो बच्चे एब्सेंट थे उन्होंने नहीं बनाया होगा। कॉर्डेट को हम 2 डिविजन्स में बांट देते हैं, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा में। प्रोटोकॉर्डेटा में हमारे पास एक क्रेनिएटा आते हैं, जैसे एम्फिऑक्सिस, बैलेनोग्लोसस, एसिडियंस, एंड वर्टिब्रेटा में हमारे पास 2 है, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोम्स। तो हम एम्फिऑक्सिस और बैलेनोग्लोसस, एसिडियन, प्रोटोकॉर्डेट्स का हम लोग डिफरेंस बिटवीन हमने लिखा था, किन में हमने डिफरेंस बिटवीन लिखा था, सेफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेटा में। किसमें लिखा था? सेफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेटा में। डिफरेंस से हमने इन्हें पढ़ा था। 2 टाइप्स के प्रोटोकॉर्डेट होते हैं, सेफेलो एंड यूरो। तो इनके फीचर हमने पढ़े थे। सेफेलो में तो हेड टू टेल नोटोकॉर्ड होती है, पर यूरो में सिर्फ टेल रीजन में नोटोकॉर्ड होती है अडल्ट में। नाउ एग्नाथा एंड ग्नाथा का क्या डिवीजन है? एग्नाथा में जो स्कल होगा वो उसका जो जॉ, उसमें जॉ अटैच नहीं होंगे। एग्नाथा आर जॉलेस। So here jawless fishes come, cyclostomata and lamprey. तो एग्नाथा में विदाउट जॉ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उसमें 2 फिशेस हमें पढ़नी है। साइक्लोस्टोम्स का फीचर्स हमने भी पढ़े थे कि वो स्मूथ होती हैं, उनकी बॉडी पूरी को स्मूथ होती है, स्केल्स नहीं होते उनमें, और सेक्टोरियल माउथ होता है। बड़ी और छोटी फिशेस पे पैरासाइट्स होती हैं ये वाली फिश। डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. ग्नाथोस्टोम्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जिनके जॉज में क्रेनिएट्स तो है ही, ये क्रेनिएटा है, ये वाली वर्टिब्रेटा सारे क्रेनिएटा, उनमें क्रेनियम मिलता है, पर उनके क्रेनियम में साथ में एक कैटेगरी है जिसमें जॉ नहीं मिलता, जिन्हें बोला गया एग्नाथा, और एक में बोला गया ग्नाथोस्टोम। मतलब उनके स्कल में जॉ मिलेगा, जॉ अटैच होगा। क्या हमारा जो स्कल है, ये हमारा पूरा स्कल होता है जिसमें हमारी फेस बोन्स भी होती हैं, हमारा ब्रेन भी होता है, तो उसमें सामने की तरफ हमारे जॉ अटैच्ड हैं। तो हमारे जॉज अटैच है, तो हम किस में आते हैं, किसके मेंबर्स हैं? हम ग्नैथोस्टोम के मेंबर्स हैं। हमारे फेस मसल्स में हमारे जॉज अटैच होते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. 2 क्लासेस में बढ़ती हैं, एक सुपर क्लास पाइसिस में चली जाती है, एक सुपर क्लास टेट्रापोडा में चली जाती है। तो पाइसिस इज द सुपर क्लास बिकॉज इट हैव 2 क्लासेस, कॉन्ट्रैक्टीज एंड ऑस्टियोक्टीज, जिसके हमने डिफरेंस बिटवीन करके फीचर पढ़े थे, कार्टिलेज फिश और बोनी फिशेस। कार्टिलेज फिश और बोनी फिशेस के फीचर्स हमने पढ़े थे कि कार्टिलेज फिश में स्विम ब्लैडर नहीं होता, इसलिए उन्हें कंटिन्यूअस स्विम करना पड़ता है। बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर होता है, तो वो आराम से उसमें हवा भरकर और डीप में भी स्विम कर सकती हैं। कार्टिलेजिनस फिश में हमने पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बोनी फिशेस में हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वाटर में फर्टिलाइजेशन होती है। एंड एग्जाम्पल दे रखी है कैटफिश एंड शार्क, इनके फीचर्स भी हम लिख चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं लिखे हैं, ये नोट्स आपको मैं पावर पॉइंट में भेजूंगी। अगर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ तो इस पावर पॉइंट को नोट करके भी आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ हम टेट्रापोडा जो दूसरी क्लास है उसमें उन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जिनके 4 लिम्स होते हैं, जो टेट्रापोड्स होते हैं। क्लास एम्फीबिया इसमें आती है, रेप्टाइल्स इसमें आते हैं, एव्स इसमें आते हैं, मैमल्स।
इज इट क्लियर? Yes, ma'am. कुछ टेट्रापोडा के एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं, जैसे एम्फीबिया में फ्रॉग और टोड बता रखा है। टोड और फ्रॉग दे आर गिवन, एंड रेप्टाइल्स में गार्डन लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, स्नेक, एलिगेटर, घड़ियाल जिसे बोलते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल। मगरमच्छ को क्रोकोडाइल बोलते हैं और एलिगेटर घड़ियाल को बोलते हैं। और एव्स, aves is what? Sparrow, pigeons, they are containing the members of the birds. Mammals में rat, rabbit। हम इन पहले एम्फीबियन के कल हमने फीचर लिखे थे, फ्राइडे में जब हम क्लास में आए थे तो हम एम्फीबियन के पूरे फीचर्स लिखे थे। आज हमको थोड़ा सा हमने रिवाइज किया है पूरे फाइलम्स को। इज इट क्लियर? प्रोटोकोड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, Yes, ma'am. प्रोटोकोड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस दिए रखे हैं, डिफरेंस दिए रखे हैं। Are you getting these differences? Are you getting the... Is the differences are shown to you on the screen? Yes, ma'am. So there are examples, with examples the differences are given. You can read them. प्रोटोकोड और वर्टिब्रेट्स के कुछ डायग्राम, प्रोटोकोड का डायग्राम, इंटरनल डायग्राम भी दिखा रखा है। जो हमने बोला था कि लैम्प्रे यानी कि साइक्लोस्टोम सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ है। कैन यू सी इट? ये सेक्टोरियल माउथ है इनका, राउंड, स्केललेस होंगी ये वाली फिशेस। मसल के सेगमेंट आपके नोटोकॉर्ड से लगे हुए हैं यहाँ पर। स्पाइनल कॉर्ड शो हो रही है, नोटोकॉर्ड शो हो रही है, गिल स्लिट्स शो हो रहे हैं आगे। 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स हो सकते हैं इनमें। माउथ दे रखा है सेक्टोरियल, लीवर है इनमें, इंटेस्टाइन है इनमें। तो ये आपकी लैम्प्रे का अंदर का डायग्राम है, इंटरनल डायग्राम है साइक्लोस्टोम्स का। लैम्प्रे, कैन यू सी इट? एंड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के फोटोज दे रखे हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स के फोटोज दे रखे हैं। स्नेक दिखा रखा है एंड लिजर्ड दिखा रखी है। साइक्लोस्टोम्स, क्लास साइक्लोस्टोम की कुछ फीचर शो हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टिस ऑक्सियस को हमने भी डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा है, यहाँ पर भी डिफरेंस बिटवीन शो हो रहा है। मेरीन फिशेस को कॉन्ट्रैक्टिस कहते हैं, फ्रेश और मेरीन दोनों में मिलते हैं वो ऑस्टियोक्टिस है। 5 पेयर ऑफ गिल्स मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टिस में, बोनी एंडोस्केलेटन, एंड 7 पेयर गिल मिलेंगे ऑस्टियोक्टिस में। नो स्विम ब्लैडर इन कॉन्ट्रैक्टिस, स्विम ब्लैडर प्रेजेंट इन ऑस्टियोक्टिस। माउथ इज वेंट्रल, नीचे की तरफ होता है माउथ, हमने बना के भी बताया था, और माउथ टर्मिनल होता है ऑस्टियोक्टिस में। विविपेरस फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनमें, और ये ओविपेरस होते हैं एक्सटर्नल होती है। और एग्जांपल्स, फिश का डायग्राम भी दिखा रखा है, कैन यू सी इट? एम्फीबियंस के फीचर्स शो हो रहे हैं, ये हमने लिखे भी हैं। एम्फीबियन की स्किन भी मॉइस्ट होती है, बॉडी डिवाइड होती है हेड ट्रंक में, नेक भी नहीं होती है, रिक्वायर वाटर फॉर ब्रीडिंग, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए। टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम इज व्हाट? ईयर ड्रम होता है इनका बाहर का, जैसे हमारे कान दिखते हैं वैसे इनके कान नहीं होते, जस्ट अंदर जैसे हमारे ईयर कैनाल के बाद एक ड्रम जैसा पर्दा जैसा होता है, इनके पास भी कान का पर्दा होता है जो इनके ईयर का काम करता है। इज इट क्लियर? हार्ट के बारे में Yes, ma'am. होता है एम्फीबियंस में, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, ट्यूबोरिकल, 1 वेंट्रिकल, कोल्ड ब्लडेड है ये। डबल ऑसिपिटल कॉन्डाइल इनमें मिलती है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स के मिलते हैं। ये सारे पॉइंट हमने कल फ्राइडे को जब क्लास थी तो हमने ये क्लास में लिखे थे, और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बोल रखा है कि सेक्सेस सेपरेट है इनके, और इनमें मेटामॉर्फोसिस देखी जाती है। फ्रॉग का एक अंदर का भी डायग्राम दिखा रखा है ताकि आप उनके सारे सिस्टम्स देख सकें। डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन हियर, brain, tongue, eyes, lungs, gallbladder, liver, small intestines, large intestines. Cloaca, the common chambers. Few amphibian images are shown, photos दिखा रखी हैं बहुत सारे frogs की। टोड की फोटो दिखा रखी है, ट्री फ्रॉग की फोटो दिखा रखी है, न्यूट की फोटो दिखा रखी है। आप देख रहे हो कुछ तो टेल वाले भी एम्फीबियंस हैं। कैन यू सी?
Some are tailed amphibians also. So here the images are shown of various amphibians. The names are given. Their names are also given. The photos. Is it clear? देख रहे हैं आप, सिलेमेंडर की टेल है, इक्थियोपिस की टेल है, यू कैन सी। एंड जो टोड है, ट्री फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग की टेल नहीं है। ये आइडेंटिफाइंग फीचर होता है सिलेमेंडर। और फ्रॉग को हम कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई? द सिलेमेंडर्स आर टेल्ड एंड द फ्रॉग्स आर टेललेस। न्यूट्स हैव टेल। रेप्टिलियंस रेप्टाइल्स जो हमें अभी करने हैं, क्रॉलिंग एनिमल्स हैं ये। बॉडी इनकी ड्राई स्केल से कवर होती है। इससे पहले जो हमारे एम्फीबियन है, मॉइस्ट बॉडी होती है, स्केल्स नहीं होते। पर इनके रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स मिलते हैं। इनकी स्किन बहुत हार्ड, ड्राई, कॉर्निफाइड होती है। पोस्ट एनल ट्रेल भी इनकी होती है। नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती इनमें। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं इन ईच। कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये। 3 चैम्बर्ड इनका भी हार्ट होता है। कार्निवोरस होते हैं। स्नेक और लेजार्ड स्किन भी छोड़ते हैं, मोल्टिंग बोलते हैं जिसे, स्किन भी रिलीज करते हैं अपनी। टर्टल्स इनमें आते हैं। कुछ रेप्टाइल्स के आप एग्जांपल्स देख सकते हो जो इनमें आते हैं। कल हम एव्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारी क्लास रेप्टाइल्स पे एंड हो जाएगी। तो रेप्टाइल्स में टोर्टोइस, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड, स्नेक्स या